Welcome to Face to Face. This is an initiative of DME Media School. DME Media School is part of Delhi Metropolitan Education. DME, we have three schools. The other two schools are DME Management School and DME Law School. We offer four academic programs which include BA LLB, BBA LLB, BBA, and BA JMC. DME is one of the premier institute of Guru Gobind Singh Indraprastha University, and it is known for an all-round performance, be it academic or co-curricular or extracurricular, and even in the area of sports. And since the time this COVID-19 has struck in the month of March, since that time we have done everything possible to the benefit of the students, which include conducting online classes and even conducting online internship during summers. And then when this session, the new academic session was to start during summers, the teachers prepared all video lectures and also planned their tutorials. And we started the new academic session on 4th of August, much before any other institute of IP University could think of initiating the classes. And we have tried to upgrade our infrastructure. We have state-of-the-art facilities on the campus. So we have actually the digital campus in DME. Let us have a look at the digital campus of DME. DME has embraced digital paradigm shift by adopting technology-based learning. Unlike other colleges, we adopted a two-step strategy. In step 1, teachers would be preparing the videos, students would be watching them. In step 2, the student would be coming to the tutorial, clarifying the doubts, making the presentations, and discuss with the teacher. At DME, we have invested in the best in the class academic ERP, which allows us to have a 360-degree robust communication amongst all the stakeholders, students and faculty members. DME's virtual learning mechanism is no less than real-time classroom teaching, wherein the students are provided the pool of e-learning resources in the form of PPTs, video lectures, and online classes in a very student-friendly environment. There is no need of mental blocks. Online teaching is as effective and interesting as offline teaching. Let the students enjoy this new mode of education. In DME, we believe in quality education. We take care of our students. We want to see them happy. Mental and emotional health are one of the most challenging issues of present times. DME Mentoring Cell takes care of that. Not just this, we go beyond academic curriculum to instill the most important employability skills in our students. Welcome to Face to Face, and as I was telling you about the program, this is an initiative of DME Media School. And to tell you something more about DME Media School, it is known for all-round involvement on different kind of activities. Particularly if I tell you about the co-curricular activities, for instance, the most important activity that the school undertakes is the International Conference ICANN, and the third edition of ICANN happened only this year in the month of June, though it was initially scheduled in the month of March, but due to this COVID-19, it could not happen. And then we organized it in the online mode, and it became the world's first 10-day digital live conference. Similarly, last year we organized the International Film Festival SIFI, and this year we are going to organize the second edition of SIFI. Besides this, we organize the BG Varghese lecture series, which has been instituted in the name of the renowned journalist BG Varghese, and this happens in every semester, every month. And today only, incidentally,
we had organized this BG Varghese lecture series in which a very celebrated film director Ashwini Chaudhary had participated. So talking about this program face to face, this is completely an out of box idea wherein Dean is talking to 3 students of DME Media School drawn from different semesters, different years. Since I am the Dean, so I am talking to these 3 students, and there is one thing which is peculiar to today's episode. Normally we pick up 1 student from each year, but today we also have one of the alumni of DME Media School, Robin Shukla, who passed out last year. And then he has migrated to Canada, so he has joined us from Canada. And then there are 2 more students with us. So before proceeding further, let us have a look at the profile of these 3 students. So welcome back again to Face to Face. Now we will start with our program, and now everybody has seen, what is the profile of these students and what all their interests and their achievements as well. So as is customary, we start from the senior most person, and today, as I told you already, we have Robin Shukla with us, who is an alumni. So to begin with, Robin, you have already passed from DME Media School. And then, if I talk about your passion and interest, so we looked at the AV, that you are a versatile personality and you are interested in so many things and you want to do the things differently, but it would be better if we listen from you only. What are your passions and inclinations, and how have you been pursuing all these years? So passion was being a sports journalist when I was doing my graduation. But right now, when I'm in Canada, I have to think very differently, because here the cricket is what I used to watch. Cricket is what I used to write about. But now I cannot, because cricket is not like Canada is not a cricket playing nation; it's a hockey playing nation, right? So in here, I have to adapt in such a way that कि मुझे journalism, सर मैं Marriott में front desk में हूँ. I'm the first international student to be the part of Marriott. Marriott, sir, बहुत बड़ी एक chain है hotels की. And so the reason that I have selected here is, sir, वो मेरा journalism और communication ही है. मैं जितने भी मैंने steps लिए हैं, ये बात मैंने सबको ही बोली है, सर, वो journalism communication नहीं है. For example, सर, अगर एक BBA का भी बच्चा होगा, उसे marketing करनी है, so what he needs is a good communication. वो communication सर journalism से आएगी. एक front desk में सर जो है बैठता है, उसमें सर अगर वो first person होता है जो एक guest को attend करता है, उसके लिए भी then he needs a communication. अगर तुम अपने आइडिया तुम आगे बता ही नहीं पा रहे हो तुम किसी भी फील्ड में, तो तुम लोग ग्रो नहीं करोगे. इट्स नॉट अबाउट कि तुम जर्नलिज्म करने के बाद ही यू वुड बी अ ग्रेट जर्नलिस्ट, यू वुड बी डूइंग न्यूज एंकरिंग और एनीथिंग. नो, द पॉइंट इज इफ यू हैव ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स, यू वुड बी एबल टू थ्रो योर आइडियाज, यू वुड बी एबल टू पुट योर आइडियाज इन अ बेटर वे दैट एवरीबॉडी कुड अंडरस्टैंड, राइट? एंड मेरा सर यही था कि जर्नलिज्म ही करना था. पर अब इधर आके राइट नाउ एज एम, और सर मेरा जो मेन गोल है लाइफ में इज टू, सर बहुत वो ऑकवर्ड होगा मैं सबके सामने बोलूंगा, इज टू ओपन अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस. मेरे पापा का भी सर कंस्ट्रक्शन बिजनेस है इंडिया में, और सर मुझे वो यहीं पे करना है. तो व्हाट कैनेडा इज आल्सो ऑफरिंग सर स्किल्स की यहाँ पे बहुत ज्यादा वैल्यू है. एजुकेशन सर, मैं अभी मैरियट में गया, मैं जब उसके लिए मुझसे सर किसी ने ये नहीं पूछा कि मेरे कितने मार्क्स आए, मैंने क्या पढ़ा, मुझसे किसी ने ये बात नहीं पूछी.
वो सीधा ये पूछा कि तुम्हारी कम्युनिकेशन कैसी है। एक सर इंटरव्यू हुआ था, 5 लोग बैठे हुए थे पूरे मैरियट के, पूरा ओरिएंटेशन हुई थी उसकी। अगर मैं आज सर कंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने यहाँ पे आके मैंने हर एक चीज सीखी है, हर एक चीज। लोगों के लिए सर कोरोना एक तरीके से ये होगा, कोविड आ गया तो दे आर स्टेइंग एट होम। इट फॉर मी इट हैज बीन ब्लेसिंग इन डिसगाइज, क्योंकि सर मैंने अपने आप में ऐसी चीजें खोली हैं, क्योंकि मैंने एसेंशियल सर्विसेज में काम करता हूँ मैं जहाँ भी। सर आज के टाइम पे मैं ये बात बोलूंगा, मुझे गार्डनिंग आती है, कंस्ट्रक्शन आती है, और सर इसके कंस्ट्रक्शन, गार्डनिंग, कारपेंटरिंग, बस मुझे सर एक इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं आता, और वो मुझे सीखना है। द पॉइंट इज, दिस इज व्हाट माय फादर ऑलवेज टोल्ड मी कि एक बहुत अच्छी सेइंग है सर एपीजे अब्दुल कलाम की। एपीजे अब्दुल कलाम के पापा ने उन्हें हर एक चीज सिखाई थी, बी इट कंप्यूटर की चीज। अब जैसे सर स्कूल में क्या होता था, जब 6th 8th 9th 10th में होते थे, समर वेकेशन होती थी हमारी, तो कोई डांस सीखने जाता था, कोई म्यूजिक सीखने जाता था। माय फादर वाज लाइक नो, डांस वांस नहीं। मैं कंप्यूटर की दुकान में भेजते थे, ताकि कंप्यूटर सीख, कंप्यूटर कैसे सही होता है। मैकेनिक की दुकान में भेजा, ये देख मैकेनिक गाड़ी कैसे सही होती है। दिस इज व्हाट द बेसिक नेसेसिटी इज फॉर हियर। if I have a house, that's what my goal is. If I have a house in here, I want to do plumbing, right? I would be spending around $200 or $300 in doing a easy stuff, क्योंकि यहाँ पे स्किल के बहुत ज्यादा पैसे हैं। नहीं ठीक है, तो Robin, you have a good communication skills, and also, I mean, as you said, because of your good communication skills, you got a job in Canada, and then you have further many goals to achieve. But then अपने स्किल्स के बारे में उसको पूछा कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। सर इंटरेस्ट तो जिसमें था सर वो सब जा चुका है। इंटरेस्ट तो अब एज सच कुछ है नहीं सर, कि जैसे लाइफ चल रही है सर वैसे चली जा रही है। वैसे होता है क्रिकेट, अगर अभी बड़ी मुश्किल से स्टार्ट हुआ है तो अभी किस तरीके से देख लेते हैं, क्योंकि क्रिकेट सर यहाँ पे देख भी नहीं सकते। नहीं तो मतलब इसका क्या हुआ, you are still exploring yourself, or you have decided certain goals for you in life? I have to be a construction man. Construction man सर, कंस्ट्रक्शन ही खोलनी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, क्या तैयारी की तुमने? सर राइट नाउ आई एम वर्किंग सर, सैटरडे संडे यहाँ पे से एक वेबसाइट है खजीजी। क्योंकि लोग किसी एक इंसान को हायर नहीं करते, तो वो क्या करते हैं सर, स्टूडेंट्स को हायर करते हैं कि वो गार्डनिंग कर दे, वो कर दे। तो सर मैंने वो खजीजी में अकाउंट है मेरा, RRS के नाम से ही। RRS सर मेरे पापा का ही नाम है, ऋतुराज शुक्ला के नाम से ही, उसी नाम से बना रखा है मैंने वो। सर जब भी सैटरडे संडे होता है तो वो मुझे कॉल करते हैं कि इस जगह पे हमें गार्डनिंग चाहिए, इस हफ्ते में हमें वो बंदा चाहिए। सर वो अच्छा पे करते हैं आर्ली वेजेस के हिसाब से, और सर उसी के मैं इस तरह मुझे सीख रहा हूँ कि हाँ मुझे कौन सी मशीन कैसे चलानी है, कैसे ऑपरेट होती है। तभी सर वो छोटे छोटे लेवल से सीखूं, तभी सर बड़े लेवल पे जा पाऊंगा। नहीं तो तुमने जो पढ़ाई की PGMC में, वो तो तुम्हारी बेकार हो गई, तो काम आ नहीं रही तुम्हारे। सर कोई नहीं सर, अगर सर मैं किसी इंसान को पिच कर रहा हूँ कि वो मुझसे खरीदे, सर मुझसे मेरी कम्युनिकेशन वो समझा नहीं पा रहा, मुझसे क्या सर्विस दूंगा, तो वो क्यों लेगा मुझसे। और सर वो जर्नलिज्म में आती है सर, कम्युनिकेशन सबसे पहली चीज, स्पीकिंग। तुम कैसे अपने आइडिया को पोर्ट्रे कर रहे हो, राइट? वो हमें जर्नलिज्म में सिखाया गया। Yeah. So moving on to Muskan. Muskan, you have been seeing the program, and in this segment, we naturally want to ask from the participants of the episode as to what are their passions and interests. In the AV also, we saw that you are interested in so many diverse things. But if you are asked to explain about your passions and all, what would you say? So first of all, I wanted to say that thank you so much for giving me the opportunity to be a part of this show. सर बहुत सारे लोग ऐसे होता है कि नहीं डिसाइड होता, बट मेरा 10th से ही डिसाइडेड था कि मेरे को अपने आप को एक्सप्लोर करना है। तो मतलब मेरे को था कि मेरे को मैथ्स कॉम ही करना है। तो उसके बाद जब मैं मैथ्स कॉम में आई, मेरा मतलब कुछ ऐसे डिसाइड नहीं था कि क्या करना है आगे। मेरे को बस ये था कि एक्सप्लोर करना है, डिफरेंट चीज़ें देखनी है, क्या होता है क्या नहीं होता। तो जैसे मैंने किया, पहले मेरे को लगता नहीं था कि मैं कंटेंट लिख सकती हूँ बिल्कुल भी, बट जैसे आफ्टर फर्स्ट ईयर जब मैंने अपनी इंटर्नशिप करी, तो मैंने जब खुद को भी मेरे को नहीं पता था कि मैं लिख सकती हूँ, और वो चीज़ मेरे को अच्छी लगी। एंड टॉकिंग अबाउट माई पैशन, डांसिंग इज समथिंग जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। आई वॉन्टेड टू शो ऑल ऑफ यू दिस पिक्चर। दिस वॉज माई फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस। एट दैट टाइम आई वॉज इन KG क्लास, एंड मैंने बहुत सारे डांस शो करे हैं, मतलब बहुत सारे पार्टिसिपेट किया है बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में। तो डांस बहुत अच्छा लगता है मेरे को, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो किस तरह के डांस फॉर्म करती हो, क्या करती हो? सर एज आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, तो मेरे को भंगड़ा करना बहुत ज़्यादा पसंद है। कहीं भी हिंदी सॉन्ग चल रहा हो, इंग्लिश हो, कुछ भी, भंगड़ा ही आता है मेरा स्टार्ट में।
And what else? I mean, we saw in your CV, in your AV, that you are interested. You are learning some language or some music आई and एम नॉट some. लर्निंग एनी लैंग्वेज. मैं सर टर्किश ड्रामा बहुत ज्यादा देखती हूँ. मेरा पूरा लॉकडाउन टर्किश ड्रामा देखते हुए निकला है. तो यस, मैं सबटाइटल्स के साथ देखती हूँ. मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे को वर्डिंग समझ आए, और मेरे को थोड़ी बहुत आती भी है टर्किश लैंग्वेज बोलने. लाइक थोड़ा बहुत समझ आ जाता है और बिना सबटाइटल्स के भी. तो मेरे को टर्किश ड्रामा देखना बहुत ज्यादा पसंद है. पूरा दिन देख सकती हूँ टर्किश तो ड्रामा. टर्किश ड्रामा में ऐसा क्या है जो इतना फैसिनेटिंग तुम्हें लगता है? सर उसकी ना इंडियन ड्रामा में फालतू की चीजें होती है, लाइक सुपर नेचुरल पावर्स एंड ऑल. बट जो टर्किश ड्रामा है बहुत रियलिस्टिक चीजें होती है, बिल्कुल लाइफ से रिलेटेड, क्या चीजें रियल हैं क्या नहीं है. बहुत अच्छा होता है. मतलब आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी देखें. नहीं, मैंने देखा है. मैंने पहले काफी वो आता था ना चैनल, जो जी का पैरिहा. जिंदगी चैनल था ना जी का. उसमें काफी पैरिहा. हाँ, उसमें काफी टर्किश प्लेयर्स आते थे, फिर वो बंद हो यस गया सर. चैनल. यस. बट देन वहाँ पे क्या है, अगर इफ आई आस्क यू टू एक्सप्लेन इन 1 or 2 sentences about Turkish plays or Turkish drama, what will you say? सर मेरे को सर रोमांटिक चीजें देखना बहुत पसंद है, और ऑलमोस्ट टर्किश ड्रामा में रोमांस होता ही होता है, तो इसलिए मेरे को पसंद है टर्किश ड्रामा देखना. तो तुमने जो टर्किश ड्रामा देखा, तो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट देयर सोसाइटी? हाउ टर्किश सोसाइटी इज डिफरेंट फ्रॉम इंडियन सोसाइटी? सर बहुत सारी चीजें इंडियन और टर्किश सोसाइटी में सेम ही है. बस मेरे को डिफरेंस लगा कि थोड़ा शादी में डिफरेंस होता है. हमारी इधर बहुत सारी चीजें होती है, उनके में बस एक ही प्रोग्राम होता है. बाकी ऑलमोस्ट सभी सेम है इंडियन और टर्किश. तो तुमने लैंग्वेज कैसे सीखी? केवल ड्रामा देख के ही लैंग्वेज यस सीख ली सर. कि? अभी पूरी अच्छे से नहीं आती है. अभी मैं सीखना कोशिश कर रही हूँ कि मेरे को और अच्छे से आ जाए. तो यस, सबटाइटल्स के साथ आता है ना, तो हम एक एक वर्ड ध्यान से सुनती हूँ कि ये वर्ड का ये मीनिंग हो सकता है और ये मीनिंग है. फिर मैं डिक्शनरी पे भी चेक करती हूँ कि इसका मीनिंग यही है. ऐसे ऐसे सर मैं सीख रही हूँ. ठीक है. तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम ये बोलो कि मुझे टर्किश ड्रामा बहुत अच्छा लगता है, इसको तुम टर्किश लैंग्वेज में बोलो, तो कैसे बोलोगे? सर मेरे को इतना नहीं आता. मेरे को कुछ कुछ वर्ड्स आते हैं अभी, क्योंकि कौन मैंने कौन से वर्ड्स आते हैं? ओके. सो सर गुड मॉर्निंग को जैसे बोलते हैं गुनाइदन, एंड यस को बोलते हैं एवित, एंड लव को बोलते हैं अश्क. सो इस तरीके से मेरे को कुछ कुछ वर्ड्स आते हैं. अभी टर्की में एक फिल्म की शूटिंग चल रही है, तुम्हें पता है? आमिर खान की सर. कौन सी फिल्म है? सर नहीं, इतना नहीं पता, बट मेरे को इतना पता है. अभी लास्ट मैंने अपना कंप्लीट किया अदीनी फेरिहा कोइदुम. इसका मीनिंग है द गर्ल नेम्ड फेरिहा. तो मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा था, इंटरव्यू देखा था यूट्यूब पर. तो उसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि मेरे को आमिर खान बहुत पसंद है. तो अभी आमिर खान वहाँ गए थे, तो उन लोगों के साथ में कॉन्फ्रेंस थी, तो यहाँ से मेरे को पता चला कि टर्की में उनकी शूटिंग चल रही है. हाँ, तो आमिर खान जाके वहाँ पे जो फोटो सबसे ज्यादा आई मीडिया में, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनकी वाइफ के साथ एक फोटो थी आमिर खान की, विच वाज शोन. राइट? यू नो अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की? एंटी नेशनल का दिया था उसे. क्या कह रहे रॉबिन? एंटी नेशनल का टैग दिया था सर शायद उसे कि अब इंडिया में तो नरेंद्र मोदी ने टर्किश के प्रेसिडेंट को लगाया था गले, वो अलाउड था, पर लेकिन तुम उससे बात भी नहीं कर सकते टर्किश की प्राइम प्रेसिडेंट की बीवी से. चलिए, ये तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज है, बट वी विल टॉक अबाउट द लाइटर इश्यूज ओनली. सो मूविंग ऑन टू अदिति कत्याल. शी इज फ्रॉम द फर्स्ट ईयर and has spent 1 year only in DME, but then she has been participating in so many activities. We all know about that, but we'll be happy to listen from her only about her passions. Aditi. सर मेरा तो सर मेन पैशन हमेशा से एंकरिंग ही रहा है. एक्चुअली मैं एक साइंस स्टूडेंट थी. मेरे घर में सभी IIT नीट ऐसे ही हैं सब. तो मैं ही कुछ अलग निकली आफ्टर, मतलब 12th में मुझे एक बार एक स्कूल में, मतलब मैं जहाँ पढ़ती थी स्कूल में, मुझे एक चांस मिला था एक क्विज कंपटीशन, जूनियर क्विज कंपटीशन को एंकर करने का. तो उसके बाद आई वाज लाइक, मेरे अंदर एक आ गया कीड़ा कि भाई मुझे करना है, यही चीज में मुझे आगे परस्यू करना है. बट सर स्टार्टिंग में पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, फिर किसी तरीके से आई जस्ट कन्विंस देम. और आज सर मेरा मेन पैशन इज लाइक एंकरिंग.
मेरे को हमेशा से एंकरिंग करनी है, मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल यही है। इसी में मैंने अभी भी ट्राई यही किया था कि मैं इंटर्नशिप भी इसी में ही करूं, बट स्टिल वो प्रॉपर वो नहीं मिली। सर दूसरा बोलो बोलो। सर दूसरा, कहीं ना कहीं मुझे थिएटर बहुत पसंद है। मैं थिएटर कॉलेज में भी बहुत करती हूँ। आई लव थिएटर। मतलब जैसे डीएमई में थिएटर इज लाइक अ फैमिली, एक छोटी सी फैमिली, एक अलग वर्ल्ड है थिएटर डीएमई में। तो इट वाज लाइक, मतलब मुझे बहुत बहुत सारे, मेरे मैक्सिमम दोस्त मेरी क्लास में नहीं है, मेरे थिएटर में ही है। तो आई वाज लाइक ब्लेस्ड टू हैव थिएटर इज लाइक माय फैमिली। इस टाइम पे आई जस्ट लव थिएटर। तो थिएटर तुमने क्या डीएमई में आके शुरू किया कि पहले से करती थी? थिएटर डीएमई में मैंने सर जस्ट एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की तरह करा था, और मुझे नहीं पता था कि मेरे को वो इतना पसंद आएगा। तो क्या 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 ऐसी चीज है जो थिएटर में तुम्हें पसंद आती है? सर एक तो सर मुझे सबसे अच्छी चीज़ है कि मुझे स्टेज पे जाना पसंद है। मुझे नहीं पसंद कि मैं ऐसे ही रहूं, मुझे कुछ अलग करना है। तो इसलिए मुझे स्टेज पे जाना पसंद है। मैंने काफ़ी कुछ परफॉर्म किया। मैंने अनुगूंज में, अलोहा में, इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे अलग अलग कॉलेजेस में भी परफॉर्म किया, और मैं जीती भी हूँ। लाइक जैसे नुक्कड़ नाटक, काफ़ी कुछ नया पता चलता है। नुक्कड़ नाटक किया, स्टेज परफॉर्मेंसेस करी। स्टेज पे तुमने कौन कौन से प्लेस किए अभी तक? सर 2 प्ले किए थे, एक अपराध और एक प्ले करा था दैट वाज लाइक एक मंटो का प्ले था, उसको करा था। मंटो कौन है? सर एक आई थिंक एक ऑथर है जिन्होंने उस पे उन्होंने, मतलब एक टाइप का एक सोशल इशू था जिसपे हमने परफॉर्म किया था पूरा। तो सर नहीं, लेकिन अभी एवी में हमने देखा कि तुम्हें डांसिंग, सिंगिंग सारी चीजें ही पसंद है। सर सिंगिंग तो नहीं, हाँ डांसिंग इज लाइक एक मेरा छोटा सा बचपन में था कि मैं करना चाहती थी। मैंने शॉ ऑडिटोरियम, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हर जगह मतलब एनुअल फंक्शंस में परफॉर्म किया, बट उसके बाद वो अपने आप ही चला गया। मतलब इतना ज्यादा वो नहीं आया। अब ये है कि मैं अपने मतलब घर पे कभी एंजॉयमेंट के लिए डांस म्यूजिक पोएट्री में इनका सर सब में ही हाथ होता है, जितने भी थिएटर के बच्चे होते हैं कोई भी देख लो। हाँ तो अच्छी है ना। अभी डांस, म्यूजिक और थिएटर से ही तो एक्चुअली ग्रूमिंग होती है पर्सनैलिटी की, and your horizon is open once you are involved into these things. So obviously we in DME always encourages these kind of things. But then Aditi, इस प्रोग्राम में if I ask you to perform something, तो तुम थिएटर में कुछ परफॉर्म करोगी कि डांस में करोगी या म्यूजिक में करोगी? सर थिएटर। तो ठीक है, सुनाओ, कोई डायलॉग सुनाओ। सर ऐसा तो कुछ खास मैंने किसी का डायलॉग नहीं याद किया, मेरा अपना ही है जो मैं फ्लुएंटली बोल देती हूँ। ठीक है, अपना बोल दो। सर जैसे कि अभी लॉकडाउन है तो हर किसी के घर की गाथा ही रहती है सर, कुछ ना कुछ। तो मैं करना चाहूंगी लाइक घर में क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं। मम्मी यार क्या है यार, कभी मैं ये करूँ, कभी मैं वो करूँ, कभी मैं यहाँ झाड़ू लगाऊं, कभी मैं वहां झाड़ू लगाऊं, कभी आप कहते हो क्लासेस ले लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। आप क्या चाहते हो यार, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई यार। क्या है यार, मैं नहीं कर सकती यार। मेरे को सुबह आप 12 बजे सुला देते हो, सुबह जल्दी उठा देते हो, मेरे बस का नहीं है। मेरे को रात को 3 बजे सोना है, सुबह 10 बजे तक सोना है। मैं नहीं करूंगी। तो ये तुम एक्टिंग कर रही थी कि ये असलियत बता रही थी? सर ये असलियत है सर। और एक्टिंग भी वही होती है, जब तक तुम उसे अपनी असल जिंदगी से ना जोड़ो तब तक वो नहीं निकलेगी सर अच्छे। नहीं, ऐसे कैसे? असल जिंदगी में आदमी कुछ और होता है, जब एक्टिंग करता है तो उसको जो कैरेक्टर मिलता है उसके हिसाब से एक्टिंग करेगा। उसको सर पहले वो अपने अंदर सोचता है कि अगर ये मेरे साथ हो रहा होता तो मैं क्या करता। सर वो तभी निकलता है। अगर कुछ इमोशनल सीन होता है तो हम ऐसे नहीं करते कि इमोशनल सीन है रोना शुरू कर दो, वो ऑटोमेटिकली नहीं निकलता। पहले हमें उसे फील करना पड़ता है कि हाँ यार अगर ऐसा मेरे साथ हुआ होता तो मैं कैसे रोती। उसके बाद सर वो धीरे धीरे, कई बार तो सर कुछ एक्टर्स के आंसू निकल जाते हैं, करते करते खुद ही निकल जाते हैं, which was रियल होते हैं सर वो। तो चलो गुड कि तुम you are so much passionate about theater and all. So now moving on again to Robin. Robin, though you passed out last year, but then you spent 3 years on the campus of DME. If I ask you about your friends, though they might be working at different locations and all, but when you were there on the campus, how was your bonding with your friends, and then your relationship with your teachers, and how did you enjoy the campus life? सर फ्रेंड्स तो नहीं थे सर, फैमिली थी सर वो, बस उनके साथ सर वो अलग ही एक टाइम था वो 3 साल का। अपना सर कॉलेज आते थे, घर पहुंच रहे हैं 7 बजे 8 बजे, कॉलेज साथ आ रहे हैं, घर साथ जा रहे हैं, बीच का लंच सब एंजॉय कर रहे हैं,
क्लासेस सारे साथ अटेंड कर रहे हैं। और सर टीचर के साथ मेरा, हर एक टीचर के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड था। अब मैं सर एक हेयर स्टाइलिंग का भी कोर्स करता था मैं, मेरा मंडे टू फ्राइडे वहाँ भी क्लास होती थी, तो मेरी वो 9 to 10:30 मेरी वो क्लास होती थी। फिर 10:30 के बाद मैं कॉलेज आता था, 11-11 बज जाते थे आते आते। तो मनमीत मैम को पता था कि मैं जा रहा हूँ, तो मनमीत मैम को ये था कि हाँ ये कर रहा है, कुछ सही कर रहा है, इसको। फिर मैं मनमीत मैम थोड़ा लेट आऊंगा, कोई बात नहीं, आराम से आ जाना बस। सारी क्लासें हमें एक्स्ट्रा क्लासेस देना, क्यों अब हम क्लास की पहली क्लास तो अटेंड कर नहीं पाते। और सर मेरे दोस्त इतने सपोर्टिव कि उन्हें पता है कि रॉबिन 10:30 बजे जाएगा, तो ये नहीं कि वो 9:30 बजे चले जाए, वो मेरा वेट करते थे कि हाँ भाई रॉबिन को घर से उठाएंगे, एक साथ जाएंगे। मतलब तुम खुद भी क्लास मिस करते थे और बाकी लोगों को भी क्लास मिस करवाते थे? सर लेकिन उनका वो क्लास करना है मिस, सर वो प्रोडक्टिव निकला है। सर ऐसा हमारे में से अभी भी कोई नहीं है। अपने सर 2 साल हो गए पास, और दूसरा साल चल रहा है हमारा। सर सबके सब अलग अलग फील्ड में सब बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। और सर लिटरली आप लोग को भी था कि हाँ कि कुछ ना कुछ तो सर करेंगे ही। अब किसी को सर भरोसा होना, हमारे प्रोफेसर को जरूर भरोसा था कि अगर सबको ऐसा लगता था कि बाहर दिखते हैं, कॉलेज के बाहर दिखते हैं सारी चीजें। अब सर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें तब मिली थी जब हमने दिवाली मेला ऑर्गेनाइज करा था। तो वो 60 बच्चे हैं सर क्लास में, हमें चूज किया गया कि हाँ यार इनसे कराया जाएगा। 2 इतने पहली बार दिवाली मेला हुआ था हमारे स्कूल में, कॉलेज में, किसने, हमारे टीचर्स ने हमारा सपोर्ट करा, तब जाके हुआ। और सर रही बात, हम नोटोरियस थे, सब कुछ थे, पर ये हमें वो लिमिट्स पता थे कि कहाँ टीचर के साथ हमें कैसे रहना है। टीचर्स ने हमें सर ये बताया कि हाउ टू बी इन इंडस्ट्री, लाइक तुम्हें सर हमें लिटरली इससे मतलब नहीं थे व्हाट इज, हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, पर उससे ज्यादा हमें मैटर हमें वो करा, वो टाइम बताया गया कि ऐसे तुम्हें एक जाके मीटिंग में अपने आप को प्रेजेंट करना है, ऐसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। ये सब हमें प्रोफेसर्स ने बताया हमारे। सर वो कोई सी भी फील्ड हो, अब कामिल सर स्पोर्ट्स के थे हमारे सब, हमें सब स्पोर्ट्स के बारे में। अब सर एक तो सबसे अच्छी बात सर ये थी हमारे टीचर्स की कि सर वो एज ग्रुप ना सर ज्यादा एज ग्रुप नहीं था हमारे टीचर्स और एक स्टूडेंट के बीच में, ठीक है सर। तो वो फ्रेंडली वाला जो होता है कि हम अगर कुछ भी हो हम वो शेयर जाके कर सकते हैं, और हमसे अगर हम चाहें तो वो हमें एज अ प्रोफेसर भी हमें वो आंसर दे सकती हैं, और एज अ फ्रेंड भी हमें वो आंसर दे सकती हैं। वो एक बहुत ज्यादा एक बूस्ट अप हमारे लिए काम किया, कि उन्हें पता है कि हाँ कि at what direction student is going, at what ऐसे कौन से टीचर्स हैं who helped you in your grooming? सर संचिता मैम, नीलम मैम, मनमीत मैम, कामिल सर, हरजीत सर, राहुल सर। अब सर राहुल सर की सर एक बात वो हमें अभी भी हम डिस्कस करते हैं, हम जब भी क्लास में, राहुल सर का एक डायलॉग होता था, मैं फेल करूंगा और मैं करता हूँ, और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर मैं फेल करूंगा तो। अब वो अभी तक हमें पता है, और सर ने किया नहीं, फेल कर दिया, फेल कर रहे हैं वो, ऐसे नहीं कर रहे हैं फेल, बहुत ठीक है सर। और प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स जो होते थे सर, एक बार मुझे ऐसे ही पता है, मैं हरजीत सर का ही लेक्चर था, मतलब वो हमारी क्लास में नहीं था, मैं 3rd ईयर में था तब, 2nd ईयर को सर पढ़ा रहे थे, और मैं दूर बैठा हुआ था वहीं कॉरिडोर में ही, मैं देख रहा था कि वहां पे सर पढ़ा क्या रहे हैं, क्योंकि सर का पढ़ाने का तरीका ही पूरा अलग था। क्लास में तुम उन्हें देखोगे नहीं, ये नहीं कि सर बुक पढ़ा रहे हैं, तुम पीपीटी दिखा रहे हैं, वो कुछ नहीं, वो तुम्हें स्टोरी सुनाते थे, तुम्हें प्रैक्टिकल सुनाते थे। अब सर एक लाइटिंग का सबसे अच्छा सर ने सिखाया था। सर लाइटिंग का अगर कोई टीचर होगा, किसी और प्रोफेसर, मुझे नहीं पता सर कैसे, सर क्लास के अंदर बता दे कि लाइटिंग ऐसे हो, 3 पॉइंट लाइटिंग ये होती है, 4 पॉइंट लाइट। सर बच्चों को बाहर लेके कॉरिडोर में खड़े होकर सूरज की रोशनी के नीचे बता रहे थे, इधर से अगर लाइट आएगी तो कैसे होगा। अब सर ये चीज, अब कोई अगर टीचर क्लास के अंदर बता रहा है 3 पॉइंट लाइटिंग, बच्चे सर क्या मतलब, हाँ चलो 3 पॉइंट लाइटिंग ये होती है, 3 जगह से जब लाइट पड़ रही है, 4 पॉइंट ये होती है। अब सर कोई बंदा, लेकिन वो परफॉर्म तो वो बाहर करेगा ना उस चीज को, आउटडोर में ही करेगा ना। अब उसे आउटडोर के बारे में 3 पॉइंट लाइट, सबसे बड़ी लाइटिंग हमारा सोर्स ही सन है, उससे ज्यादा सर ने पूरा बताया था। फोन के अंदर सर मोनोक्रोम का सर ने एक अलग ट्रेंड चला दिया था पूरा, बीजेएमसी में एक अलग ट्रेंड था मोनोक्रोम का। Okay, so उसमें मोनोक्रोम फोटोज तो होंगी। So moving on to Muskan again. Muskan, if I ask the same question to you, what will you say about your friends, teachers, and the campus life? सर डीएमई की सबसे अच्छी बात है कि हमारे फैकल्टी मेंबर्स बहुत 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 ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब इतने सपोर्टिव है ना, हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है ना कभी भी मना नहीं करते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल हमें किसी क्वेरी को पूछने के लिए कॉल किया और बाई चांस वो कॉल नहीं उठा पाए तो कॉल बैक भी उन्हीं का ही आता है,
तो इतना ज्यादा सपोर्ट करता है। जैसे रॉबिन ने भी बताया हरजीत सर के बारे में भी, सर मेरे को ना फोटोग्राफी बिल्कुल पसंद नहीं थी करना, अपनी पिक्चर्स क्लिक करना बहुत अच्छा लगता है पर दूसरों की फोटोग्राफी मैं नहीं कर सकती। तो सर ने मेरे को सीफी के टाइम पे फ्रेम्स में ही ऐड कर दिया कि लो अब तुम नहीं कर सकती, तुम्हें करना पड़ेगा। तो यही है कि बहुत ज्यादा पुश करता है कि तुम्हारे अंदर ये हिडन टैलेंट है, तुम कर सकते हो। तो ये चीज बहुत अच्छी है। और फ्रेंड की बात रही तो सर कोई ऐसा स्पेसिफिक ग्रुप नहीं है मेरे क्लास में, मेरे सभी दोस्त है, मेरी सभी से अच्छी बॉन्डिंग है, सबसे ही अपना अच्छा मतलब वो। So would you like to perform something? Are you prepared? Are you interested? Sir, about what? Anything? अभी अदिति ने तो एक्टिंग करके जो रोज सुबह करती है वही शाम को बता दिया आज उसने। ओके सर, मैं एक नोबिता का डायलॉग बोलती हूँ सर, अगर ऐसा ही। डोरेमोन मेरे को एक गैजेट दो ना, चियान सुनियो मिलकर मेरे को परेशान कर रहे हैं, शिजुका भी मेरी बात नहीं मान रही है, डोरेमोन। So Aditi, if I ask you about your friends, though since, as you already said, since you are involved in so many activities and particularly theater, so you are having friends outside your semester, outside your class, and then obviously since you are involved in so many activities, number of teachers would have come into your contact, and also what will you tell us all about this? सर फ्रेंड्स की बात करूँ तो सर मेरे कुछ ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, मैं बोलती सबसे वो मतलब मेरी फ्रेंडशिप अच्छी है, तो क्लोज वन है वो 2-4 ही हैं, और वो भी थिएटर से ही है, पूरा थिएटर ही चलता है मेरी जिंदगी में पूरा टाइम। और सर टीचर्स की बात करूँ तो सर टीचर्स लाइक बहुत सपोर्टिव है सर। कृतिका मैम इज लाइक, मैं जब भी उन्हें कॉल करती हूँ वो हमेशा अच्छा ये है, मैंने सर मैम को बताया मैम मेरी इंटर्नशिप लग गई है, मैंने ऐसे किया है, मैम एक बार आप मेरा सैंपल वीडियो देख लो जो मुझे भेजना है, तो मैम वाज लाइक हमेशा अवेलेबल रहेंगी, हमेशा सुनेंगी, उसके बाद प्रॉपर कॉल करके दोबारा से बताएंगी भी इसमें क्या गलती है, इसमें क्या करना है। इवन एक बार मैंने मोहित सर को रात को 10 बजे कॉल करा, मैंने सर मुझे ना लैपटॉप लेना है तो सर मुझे आप गाइड कर दो, तो सर ने मुझे रात को 1 घंटा समझा के पूरा फीचर्स बता दिया, लैपटॉप ये वाला लेना, ये वाला लेना, ये वाला लेना। सर इट वाज लाइक कि आप छोटी सी छोटी प्रॉब्लम भी ना मतलब हमेशा से जाके आप मतलब आराम से बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। सुकृति मैम हमेशा मैम लाइक तो मतलब तुम टीचर्स को ऑड आवर्स पे परेशान करती हो? सर ऐसा नहीं है और परेशान नहीं है, मतलब सर ठीक है मैम लाइक ऐसे मतलब कुछ बॉन्डिंग हो जाती है सर मैम टीचर्स के साथ भी ऐसी कि वो अपने आप ही फिर वो हो जाता है कि घर वाली बात हो गई। तो सर बस मेरे ख्याल में इसीलिए तुम आज शो में हो, इसीलिए कृतिका मैम तुम्हें देखने के लिए मौजूद हैं। सर मैम हर किसी के एपिसोड में थी। अच्छा, okay, good. So moving on to Robin. Robin, you told us already about your father and all, but if you can tell us something more about your parents, your family, and their contribution to whatever you are trying to do in your life. Sir, I belong to a nuclear family. So Papa है, मम्मी है, मैं हूँ. And sir, my superhero, my goal in life is to become what my father is. मेरा हमेशा से यही रहा है कि जो मेरे पापा है मुझे वही बनना है. अगर मैं 5% भी उनका बन जाऊँ तो बहुत ही बड़ा होगा, चीज होगी. सर हर एक चीज में सर when my father told me like he wants me to be an engineer because he belongs to a construction line, right? Then I was like, no, I'm very bad at maths. I won't be able to pursue anything about that. And then he said, what do you want to become? And I was like, sir, पूरे दिन sports देखता था, cricket. Sir, cricket is like anything जो मैं पूरे दिन देख सकता हूँ. तो I said, I want to be a sports journalist. तो ठीक है, अब करो IPA का एग्जाम. उन्होंने कभी मुझे नहीं बोला कि कुछ नहीं. अब ठीक है, अब IPA का एग्जाम दिया. IPA में पास हो गए. अब अभी ये मान लो सर मेरे घर वालों को ये भी नहीं पता होता था मेरे मार्क्स कहाँ कितने आ रहे हैं. मैं इतना दिखा देता हूँ मार्क्स. मेरे पापा को आज तक मेरा विश्वास नहीं होगा कि इसका 12th में नंबर कैसे आ गए. पढ़ा तो था ही नहीं है. कॉलेज में पढ़ा तो था ही नहीं. अभी सर मुझे कॉलेज में इसमें ही मुझे $9,000 की स्कॉलरशिप मिली है इसमें ही मेरे मार्क्स के लिए. मेरे घर वालों को अभी भी सर मार्क्स आ ही नहीं सकते थे. उनका यही है, मतलब उनका एक तरीके से मुझे अपलिफ्ट करने का वो तरीका है कि आ ही नहीं सकते. नहीं तो आए कैसे फिर? कि मतलब कैसे आ गए मार्क्स में? नहीं, उनको उम्मीद नहीं थी तो तुम बताओ कि कैसे आ गए? सर द पॉइंट इज ना सर, पढ़ाई को अगर सर मैं बुक से पढूं तो सर मुझे लिटरली समझ नहीं आना सर. उसको सर हमेशा एक वीडियो फॉर्म में हर एक टॉपिक सर कोई भी टीचर अगर पढ़ाती है उसकी एक अलग वीडियो यूट्यूब में होती ही होती है. इन किसी भी सर इतनी सारी थ्योरीज थी हमारे सर हरजीत सर हमें भेजते थे
कैमरा की फंक्शनिंग भेजते थे सर, वो कैमरा की बिना सर अगर तुम्हें उससे समझ नहीं आया, तुम यूट्यूब पे वीडियो देखो, सर से ही पूछो कि कैसे कैमरा फंक्शनिंग, वो अलग तरीके से बताता है। क्योंकि सर एक बेसिक क्या होता है, तुम्हारे माइंड में ये होना चाहिए कि फंक्शनिंग होती कैसे है इसकी, हाँ ये ऐसे ऐसे होता है बस। तुम्हें उसके लिए सर एक जर्नलिज्म सबसे बड़ी बात ये थी, यू डोंट नीड अ कॉपी बुक लैंग्वेज, जो बुक में है तुम्हें वो नहीं लिखना कभी, यू हैव टू राइट व्हाट यू थिंक अबाउट इट, व्हाट यू हैव परसेप्शन अबाउट इट, राइट। तो उसमें बस वही लिखना होता था। अब मैं लिखता था, अब सर असाइनमेंट के चक्कर में ना सर घर वालों को बहुत ही था कि असाइनमेंट कभी नहीं बनते थे। राइटिंग सर मेरी बहुत ही खराब थी, राइटिंग सर इन द सेंस लिखने वाली, मतलब मेरी हैंड राइटिंग बहुत खराब थी, वो मुझे भी समझ आ जाए तो बहुत बड़ी बात। पापा ने सर इधर ऐसे ना इधर पकड़ पकड़ के सिखाई थी, इधर पकड़ के अब लिख अब लिख। मैं पेन की बहुत टिप से पकड़ता था उसको, बहुत टिप से। तो राइटिंग में भी सर आने लगे नंबर, यहाँ भी आ गए मार्क्स। अब सर यहाँ पे आके ना असाइनमेंट्स का बहुत बड़ा एक रोल पता चल रहा है, बहुत बड़ा रोल। असाइनमेंट सर हम इंडिया में भी बनाते थे, असाइनमेंट सारे के सारे दिए सर। असाइनमेंट्स का इस पार्ट ऑफ द कंट्री में बहुत है। मैंने पापा को बोला था, मैंने कहा डैडी यहाँ पे लगता है असाइनमेंट नहीं हो पाएंगे, इंडिया में चलो फिर भी मैं थोड़ा कर लेता था दोस्तों से पता करके, यहाँ नहीं हो पाएगा। कह रहे सब हो जाएगा, कुछ नहीं होता उसमें। और सर लिटरली माय फादर इज लाइक नॉट दैट मच एजुकेटेड, नीदर माय मदर इज। मम्मी 10th पास, पापा 12th पास। वो भी 12th भी सर मम्मी ने पता नहीं 10th कैसे करी, हमें ही पता है। तो मैं कैसे पता सर, और सर गांव में कहाँ होती है सर, बहुत नहीं, रूरल एरिया से। तुम्हें कैसे पता कि मम्मी ने 10th सर कैसे मैं किया? गया था एग्जाम देने 10th का, मम्मी के साथ मैं गया था 10th का एग्जाम गोदी में। अच्छा, ओके। तो तुम्हें याद है बचपन का कि तुम गोदी में गए थे, तो एग्जाम देने गई थी? तो बड़ी अच्छी मेमोरी है तुम्हारी। बचपन में कितने साल तक की बातें तुम्हें याद है? सर मम्मी सर 14 साल की थी जब मैं पैदा हो गया था। मम्मी 14 साल की थी जब मैं पैदा हो गया था। तो क्या बाल विवाह हो गया था उनका? बाल विवाह हुआ सर गांव में। सर बहुत रूरल पार्ट से हम बिलोंग करते थे इंडिया में। आई बिलोंग टू अ प्रॉपर ब्राह्मण फैमिली, तो बहुत रूरल एरिया से बिलोंग। पापा सर बहुत अलग कहानी है पापा की। तो वही पापा ने सर, अभी जब मैं यहाँ पे आया, पापा ने सर बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रहे हैं, बहुत बड़ा। जब मैं पहली बार कनाडा आया था सर, एक मेरी यहाँ पे जॉब, क्योंकि जब 5 से 6 महीने बर्फ गिरती है तो कुछ भी नहीं होता सर, और बर्फ बहुत गहरी होती है इधर। तो मैंने एक जॉब ढूंढी थी। मैं 6 जैन को मेरा कॉलेज चालू होता है, 11 जैन को मैं डिश वॉशिंग की जॉब लगी थी मेरी। अब मैंने पापा को फोन करा, पापा डिश वॉशिंग। अब मेरे पापा ने मुझे ऐसे बोला था, मैंने कहा पापा डिश वॉशिंग का है, वॉशरूम भी साफ करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ता है। पापा, अब मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ तो हमारा कुछ ऐसा होता नहीं। तो पापा ने मेरे बोली, रॉबिन सबसे अच्छी स्टार्ट यही हुई है, क्योंकि मैंने जब पहली बार दिल्ली आया तो मैंने भी यही काम करा था। और आज देख मैं किस स्टेज पे हूँ। आज सर भगवान की दया से 4-5 प्रॉपर्टीज है इंडिया में। तो वही पापा का है कि एक इस तरीके से उन्होंने मुझे इंस्पायर करा है, उनकी एक ऐसी आइडियोलॉजी लाई है मेरे अंदर कि हाँ यार, कि जो मेरे पापा है ना, मुझे वही बनना है। नहीं, काम तो कोई भी छोटा नहीं होता। इंडिया में उतना वो नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में आपका काम इम्पोर्टेंट है, कौन सा काम है, क्योंकि जो वर्क कल्चर तो यहीं से आता है। ओके, सो मूविंग ऑन टू मुस्कान. Muskan, though you told us about, I mean, other your passions and all, but perhaps I thought something is missed. But then, if you can tell us something about your family and your parents. सर अगर मैं फैमिली की बात करूँ तो मेरे फादर जो है 10th के बाद चाहते थे कि मतलब 12th कंप्लीट हो जाए, फिर मैं फ्रैंकलिन ज्वाइन करके एयर होस्टेस बन जाऊँ। बट मैंने कहा डैड मेरे को नहीं करना है ये सब, मेरे को नहीं पसंद, मेरे को अपने आप को एक्सप्लोर करना है। तो एट दैट टाइम मेरा मन था कि मैं कॉमर्स लूँ। तो फिर डैड ने बोला कि अगर आपको आगे जाना ही मैथ्स कॉम करना है तो फिर आपको ह्यूमैनिटीज लेनी चाहिए, कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा, स्टार्टिंग से आपको थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स की नॉलेज होगी, हिस्ट्री की नॉलेज होगी। तो डैड ने उस टाइम समझाया, फिर मैंने ह्यूमैनिटीज से ही किया। और फिर जैसे अभी फर्स्ट ईयर के बाद मैंने अपनी इंटर्नशिप करी पायनियर में, तो उन्होंने मेरे को बोला फर्स्ट डे कि आपको ऐसे ऐसे करके इंटरव्यूज लेने पड़ेंगे। और फिर आफ्टर 1 वीक उन्होंने मेरे से बोला कि आपको मुंबई भी मूव करना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। तो उस टाइम मेरे को लगा कि नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि आज से पहले डैडी ने कभी, मम्मा ने भी नहीं भेजा था मेरे को बाहर। तो मैंने उस टाइम उन्हें मना कर दिया कि मैम मैं नहीं जा सकती। फिर घर आके मैंने अपने फादर को बताई ये बात कि ऐसे वो मेरे को बोल रहे थे आपको मुंबई जाना पड़ेगा। तो डैड ने बोला कि अगर आपका काम है, आपको एक्सप्लोर करना है, आगे आपको यही काम करना है। अगर आप एंकरिंग में भी जाओगे, फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड-19 की सिचुएशन है, तो एंकर्स को अभी भी अपना काम करना पड़ रहा है, उनकी एक दिन भी छुट्टी नहीं हुई है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको जाना पड़ेगा। उस टाइम मेरे को भी थोड़ा फियर था, अकेले मैं कैसे जाऊंगी, किसी को नहीं जानती, अलग अलग जर्नलिस्ट आएंगे, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होंगे। तो डैड ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया, मम्मा ने भी। और सर बहुत सपोर्ट करती है मेरी फैमिली, मेरे को कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं किया उन्होंने। जो मेरे को चाहिए तो वो मेरे को हमेशा सपोर्ट ही करेंगे। And Aditi,
I think you have a different story. Can you tell us about that? सर एक्चुअली मैं एक हमेशा से मतलब मैंने साइंस की 12th के बाद, तो मेरे पेरेंट्स भी यही चाहते थे कि मैं आगे से या तो आईआईटी करूं, जिससे मतलब मेरी पूरी फैमिली में रिवाज चलता आ रहा है, या वो करूं, या मैं आगे से अगर मुझे साइंस, मैंने साफ बोल दिया था मुझे साइंस नहीं करनी, मुझे करना ही नहीं, मेरे बस का नहीं है, तो मैं क्यों करूं। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है बीबीए कर लो, मैथ्स तो थी तुम्हारे पास तो बीबीए कर लो, बीएमएस कर लो, और अगर तुम्हारे हद का है तो तुम लॉ कर लो, लेकिन बीजेएमसी तो कतई नहीं करनी। तो बीजेएमसी से ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम थी उन्हें? सर क्योंकि सर एज एन मैं एंकरिंग करना चाहती थी, मेरा फर्स्ट वही था, तो उनको ये था कि रात को लेट आएगी, सुबह मतलब कैसे होगा, इसमें टूर्स होंगे, ट्रैवल्स होंगे, तो वो इस चीज को थोड़ा नहीं करते, बोला कि तुम टीचिंग लाइन ले लो। इवन उनका अब भी कहना अगर तेरा एंकरिंग में कुछ नहीं आना तो टीचिंग लाइन ले लो। तो मैंने उस टाइम सर एक्चुअली मैंने 12th के बाद 1 साल ड्रॉप किया। लेकिन टीचर्स को भी एंकरिंग करनी पड़ रही है, मालूम है कोरोना के आने के बाद क्या हुआ है, जैसे कि हमारे टीचर्स जितने हैं तुम्हारे लिए वीडियो लेक्चर्स बना रहे हैं, तो जिसने कभी उस तरह से कैमरा फेस नहीं किया था वो कैमरा फेस कर रहे हैं, उन्हें सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ रही हैं जो कि एंकर को ध्यान रखनी पड़ती हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली ऑल द टाइम वी आर फेसिंग द कैमरा, so we must understand how to look at the camera and lighting and everything has to be looked into. तो वैसे ठीक है तुम्हारे पेरेंट्स जो कह रहे हैं तुम टीचिंग में जाओ और वहीं एंकरिंग करना। सर ऐसा नहीं है, बट सर मेरा कुछ और है ना, मैं ऐसा नहीं, मतलब मैं एक न्यूज चैनल में आना चाहती हूँ अच्छे से, मतलब प्रॉपर तरीके से करना चाहती हूँ, क्योंकि सर तो न्यूज चैनल में क्यों आना चाहती हूँ, लोग देखें तुम्हें इसलिए? हाँ सर एक्टिंग तो मैं नहीं कर सकती ना, एक्टिंग तो करने ही नहीं देंगे, खैर मना है साहब। तो सर मैंने 1 साल अपने पेरेंट्स, तो एंकर्स भी तो न्यूज चैनल में एक्टिंग ही करते हैं। सर इट्स नॉट अ प्रॉपर एक्टिंग ना, उसमें तो मुझे बहुत पूरा मतलब एक फील्ड ही पूरा अलग हो जाएगा, उसमें बिल्कुल ही सब कुछ अलग हो जाएगा। तो सर उन्होंने मतलब मेरे को 1 साल मैंने इस चीज के लिए ड्रॉप किया। एक्चुअली मेरे को 1 साल पहले ही डीएमई ऑफर हुआ था बीबीए के लिए, और मैं 40,000 भर भी चुकी थी। फिर उसके बाद मतलब मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने अभी हार मान ली तो फिर मेरा पूरा करियर चेंज, तो अगर मैं थोड़ा सा अभी फाइट कर गई ना तो फिर सही है। तो उस टाइम मैंने ये बोला, मैंने कहा पैसे वापस निकलवा लो, मैं नहीं जाऊंगी कॉलेज, मेरे को जब करना ही नहीं बीबीए तो मैं क्यों करूँ। तो सर उस टाइम बहुत बहुत चीजें हुई, पापा ने बोला नहीं समझो बेटा ऐसा नहीं होता, बट स्टिल सर कुछ टाइम बाद मेरे रोने धोने के बाद मान गए वो कि ठीक है कर लो बीजेएमसी। तो मतलब थिएटर तुमने पहले ही शुरू कर दिया था प्रॉपर ज्वाइन करने से पहले? नहीं सर, नहीं, रोना धोना करके तुमने मना लिया ना पेरेंट्स को? सर वो तो सर बचपन का टैलेंट है ना कहीं ना कहीं तो निकलेगा सर। सर एट लास्ट फिर वो मान गए, इसी वजह से मैं जब कॉलेज आई तो मैं ऑलरेडी कॉलेज में सबको जानती थी पहले से, क्योंकि विशाखा शर्मा वो मेरे साथ, हम लोग सब साथ में ही रहते थे, वहीं पास में रहती है विशाखा शर्मा, हार्ट को मैं जानती थी, मैं बहुत सारे सीनियर्स को जानती थी। मैं कॉलेज में आई तो मुझे फ्रेंड्स बनाने की दिक्कत ही नहीं हुई, मुझे लगा ही नहीं मैं फ्रेशर हूँ, मैं बल्कि फ्रेशर्स, मैं सब सीनियर्स के साथ बैठ के फ्रेशर्स को देख रही थी, अच्छा ये कौन है ये कौन है। तो यू स्विच ओवर साइड्स, मौका पाके इधर से उधर साइड बदल लेती हो? नहीं सर, फर्स्ट ईयर मेरी अभी भी अगर मैं आपको बोलूँ तो मेरी फर्स्ट ईयर में ज्यादा अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है जितनी सेकंड ईयर में, क्योंकि मैं उनको पहले से जानती हूँ, मतलब स्कूल फ्रेंड्स भी हैं, तो इसलिए उनको मैं ऑलरेडी वो इस कॉलेज में, तो हमने सबने एक प्लान बनाया था हम डीएमए में जाएंगे, तो ऑलमोस्ट सारे ही आ गए डीएमए में सर। चलो गुड, सो यू हैव अ गुड पार्टी। हाँ रॉबिन कुछ कह रहे हो? सर मेरे पापा से अभी कल ही बात हो रही थी फोन पे, तो मैंने उनसे यही बोला कि डैडी मुझे ना अभी तो मेरा ये हो गया है पढ़ाई, मेरी 1 साल की पढ़ाई और है, सो मुझे जर्नलिज्म और पढ़ना है मुझे, क्योंकि सर मुझे ना पढ़ने में इंटरेस्ट है और जर्नलिज्म मेरा हमेशा से इंटरेस्ट है। पापा ने कहा ठीक है। नहीं तो कनाडा में you have to find out, but I can give you this idea. There are 1 or 2 good universities which offer courses in sports journalism. सर मुझे पता है, मैंने उसमें सब एक्सप्लोर कर रखा है, हर चीज मैं देखते रहता हूँ। तो मैंने बात की तो मैंने कहा क्या करना है उसमें, तो सर मेरा तो पहले कंस्ट्रक्शन सर करनी है, उसके साथ सर मैंने सोच रखा है कि मेरा 1 साल की मेरी पढ़ाई और है अभी, क्योंकि सर एक कनाडा एक ऐसी कंट्री यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी कम है और एरिया बहुत ज्यादा है सर, यहाँ से बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट होती हैं, तो अभी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत से चलता है, तो पढ़ाई चल रही है मेरी सप्लाई मैनेजमेंट की, और उसके बाद सर मुझे मास्टर्स करनी है जर्नलिज्म में, उसके बाद सर पीएचडी करनी है जर्नलिज्म में। तो सर तो तुम थोड़ा कुछ जब तक चल रहा है, जब तक पढ़ाई चलेगी, पढ़ाई नहीं रुकेगी। लेकिन अब तुम थोड़ा डायग्रेस कर रहे हो, पहले तुम कह रहे थे कि तुम्हें कंस्ट्रक्शन बिजनेस खड़ा करना है, अब तुम्हें जर्नलिज्म में पीएचडी भी करनी है।
सर पढ़ाई तो मेरी सर जब तक मैं हूँ 40 इयर्स 50 इयर्स तक पढ़ाई सर चलती रहती है। पढ़ाई सर चलेगी वो मेरे पढ़ना, क्योंकि सर यहाँ पे क्या है, द पॉइंट इज पढ़ाई उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जाएगी जितना तुम आगे में बढ़ते रहोगे, राइट? क्योंकि सर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस अगर मैं खोल लेता हूँ सर, आई वॉन्ट बी दैट गुड इनफ दैट माई फादर इज, कभी भी। मेरे पापा वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, सर मुझे जर्नलिज्म इसलिए करनी है क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड, मैं अपने अंदर का वो नहीं कर सकता कि जो मुझे करना था मैं वो नहीं कर पाया। मेरे पापा वही कह रहे हैं, अगर तेरा मन है तो वो करना है। Okay, so moving on to Muskan. Muskan, if I ask you as to what you would want, though there are still 1 year to go after completing this in your career, what will you do? सर मेरा तो अभी तो मेरा यही है कि मेरे को एंकर बनना है, न्यूज एंकर, बट मेरे को अभी पक्का नहीं पता कि मैं बाद में क्या करना चाहती हूँ। आई एम कंफ्यूज। अभी जैसे इस सेमेस्टर मेरे पास इवेंट मैनेजमेंट है, उसे पढ़ने में मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता है। मैम बोलते हैं अब तुम्हें वृत्ति का ऑर्गेनाइज करवाना है, सिटी ऑर्गेनाइज करवाना है, आई कैन का भी जैसे मैम ने अभी थोड़ा सा कल की क्लास में बताया था, तो वो भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं बहुत कंफ्यूज हुआ कि क्या करना है। और अदिति, तुम भी एंकर ही बनोगी कि अभी थोड़ा और सोचना है कि क्या करना है? सर एक्चुअली अभी मेरा मतलब कहीं ना कहीं ग्राफिक डिजाइनिंग में भी थोड़ा बिल्डअप हो रहा है कि ठीक है मैं डिजाइनिंग भी करती हूँ, एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह। तो फिर सर अभी कुछ ऐसा कंफर्म नहीं है, मैं अभी थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि मुझे करना क्या है, बट मेरा फेस अभी तक मेन एंकरिंग ही है जो अभी तक मुझे सबसे ज्यादा मतलब खुशी देता हो। चलो अच्छा है। आई मीन वी विश कि कुछ साल बाद हम तुम्हें किसी टीवी चैनल पे न्यूज़ पढ़ते हुए देखेंगे। So we move on towards the end of the program, and before closing, I would like to say thanks to my team, the team which has made it possible that this show is running every day. And I would like to make a mention of my creative and the production team, which comprises Deepika Dhawan, Sumantra Sarthi Das, and Ritik Ghosh. And then Dr. Susmita Bala and the entire faculty member of DME Media School. They have been a big support to translate this idea into reality. So I thank you all. I thank you three also to be part of this show and to helping and produce a very lively episode. Thank you all. Thank you, sir.